آج کی اس ویڈیو میں ری یوز کانٹینٹ یوٹیوب مونیٹائزیشن کمپلیٹ ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ ری یوز کانٹینٹ کیا ہے، ری یوز کانٹینٹ کس وجہ سے آتا ہے اور یوٹیوب یہ اس کا سلوشن کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے ری یوز کانٹینٹ۔ آپ نے نام سنا ہوگا ری یوز کانٹینٹ، جس طرح کرکٹ میں کرتے ہیں نا ری پلے کیوں کر دیتا ہے، چیک کر لیتا ہے کہ اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں، کوئی غلطی تو نہیں ہے، وہ پر ری پلے اس طرح ہے ری یوز کانٹینٹ۔ ری یوز کا مطلب کیا ہے، اس ورڈ کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے کہ ری یوز کا مطلب کیا ہے۔ ری یوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز ایک بار یوز کی ہے، آپ اس کو دوبارہ یوز کرتے ہو تو یہ یوٹیوب کی پالیسی کی خلاف ورزی ہے۔ آپ دوبارہ ٹو ٹائم ایک چیز اپنی ویڈیوز میں، اپنے یوٹیوب کی چینل میں آپ یوز نہیں کر سکتے، تو یہ ری یوز کانٹینٹ ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک چیز دو بار یوز نہیں کر سکتے۔ اب یہ کیوں آتا ہے ری یوز کانٹینٹ؟ یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ کچھ اب نئے جو یوٹیوبرز ہیں وہ خاص طور پر وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، ہم سے بھی مسٹیک ہوئی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایکسپیرینس بھی ہوا، اور میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں۔ یہ کہ جتنا ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے، یہ ری یوز کانٹینٹ کے اوپر، اور یوٹیوب کی واضح پالیسی ہے کہ آپ ایک ہی دو بار نہیں اپلوڈ کر سکتے۔ اب اس میں یہ ہے کہ نئے یوٹیوبر اسپیشلی بہت سارے یہ غلطی کر لیتے ہیں کہ کچھ آپ یہ جو مسٹیکس ہوتے ہیں ویڈیوز میں، صرف ویڈیوز میں نہیں ہوتی، اگر آپ کا تم نیل سیم ہو، ایک ویڈیو کے لیے آپ نے تم نیل لگایا ہو، ایک تم نیل آپ نے بہت ساری ویڈیوز پہ لگایا ہو، تو یہ ریوز ہے، یہ ریوز میں آتا ہے۔ اگر آپ نے ایک ویڈیو دو بار اپلوڈ کی ہے، سیم ویڈیو دو بار اپلوڈ کی ہے، تو یہ ریوز کانٹینٹ میں آتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے چینل ریجیکٹ ہوتے ہیں میٹا ڈیٹا کی وجہ سے، ری یوز کانٹینٹ کی وجہ سے، کاپی رائٹ کی وجہ سے، لیکن ہم بات کرتے ہیں ری یوز کانٹینٹ کی وجہ سے۔ جب آپ کی 4000 گھنٹے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ اپلائی کرتے ہو یوٹیوب مونیٹائزیشن کی لیے، لیکن وہاں پہ یوٹیوب آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپروو نہیں کیا جاتا آپ کی چینل کو، کیونکہ ری یوز کانٹینٹ کی وجہ سے آپ کی چینل کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور آپ یوٹیوب کے پارٹنر پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو جب آپ کو یوٹیوب کی طرف سے ایک ای میل آتا ہے، تو وہ ای میل میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ نے جانا ہے اپنے جی میل کے اوپر، جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا ایک میسج آتا ہے۔ میں ابھی جا کے آپ کو وہ چینل بھی دکھاؤں گا، یہ ایک بہن ہے، اس کا چینل ہے کوک ود اے کے نام سے ہے، اس کا چینل ہے، تو اس کی وجہ سے اسی کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی ہے کہ اس نے مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کیے، تو وہاں سے ان کو پھر ریجیکٹ کر دیا کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ری یوز کانٹینٹ یوز کیے ہوئے۔ اب وہ ری یوز کانٹینٹ کیا آتے، پھر میں نے چیک کیا اس کا چینل کمپلیٹلی، اور پھر میں نے اس کو جو سجیشن دیے، جو مشورہ دیے، اور وہ جو ابھی جو کلیئر کیا ہوا ہے اس کا جو چینل ہے، اب وہ میں نے کیسے اس کو کیا مشورہ دیا، کیا اس نے کیا، میں نے خود اس کی کیا سیٹنگ کی ہے اس چینل کی، کمپلیٹلی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے ہم آتے ہیں یہاں پہ، میں آپ کو وہ ای میل دکھاؤں گا جو ای میل یوٹیوب کی طرف سے آیا ہوا۔ یہ وہ ای میل ہے جو یوٹیوب کی طرف سے آتا ہے کہ آپ کا جو ہے تھینک یو فار اپلائی آپ نے کر دی تھی، لیکن آپ نے انفارچونیٹلی وی فاؤنڈ دیٹ یور اپلیکیشن ڈز ناٹ میٹ اور یوٹیوب پارٹنر پروگرام پالیسی، یعنی آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یور چینل از ناٹ اپروو فار دی یوٹیوب پارٹنر پروگرام، ہاؤ ٹو ری اپلائی۔ اب وہ کہہ رہے کہ ری اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہے اور کیا کیا چیزیں چینج کرنی ہے۔ اب یہاں پہ اسکرول ڈاؤن کر کے تھوڑی سی پرابلم ہے یہاں پہ، کیونکہ میں نے ریموٹ سے لیا ہے اس کے سسٹم کو یہاں پہ، تو سم ٹائم تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے۔ یہاں پر آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو آپشن دے رہے ہیں کہ آپ اگر اپیل میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں۔ وٹ از مین فار یور چینل، اب یہ کہہ رہے کہ whilst you can't monetize as a result of this, you still have access to most other creator feature and can upload video, edit or delete your video, or communicate with your audience۔ تو اس کی تھرو اب ہم نے جانا ہے مونوٹائزیشن کی اس پیج کے اوپر، آپ کو کہہ رہے کہ ہاؤ ٹو ری اپلائی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، میں یہاں سے جا کے ڈائریکٹ مونوٹائزیشن کی پیج کے اوپر جاتا ہوں، آپ کو وہاں سے یوٹیوب جو کریٹر اسٹوڈیو ہے، میں نے آپ کو اگر یہاں سے ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہو،
जा सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से टैब ओपन करके आपका चैनल जिधर लॉगिन है यहाँ से सिंपली आप यूट्यूब में जाएं और आपकी मेन पेज के ऊपर आपको दिखा देगा कि आपका रीयूज कंटेंट की वजह से जो है आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जा सकता और रिजेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से आपने योर चैनल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, यहाँ से कस्टमाइज चैनल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे मोनेटाइजेशन की मेन पेज के ऊपर आपने आना है और यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये रीयूज कंटेंट की वजह से आपका चैनल जो है वो रिजेक्ट हुआ है। चैनल यूजर समवन एल्स कंटेंट विदाउट मेकिंग चेंज दैट एड सिग्निफिकेंट वैल्यू। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपने क्या करना है। अब जाके मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ इसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है चैनल की। क्यों रिजेक्ट होता है मैं ये वाई क्यों होता है। तो कंटेंट में आके आप जो जो यूट्यूबर है वो जो मिस्टेक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं एक वीडियोस को यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है डू नट्स हाउ कैन मेक डू नट्स एट होम। तो अभी तो मैंने इसको क्लियर किया हुआ है, लेकिन ये सारे सेम थे। इसकी जो टाइटल है, अगर आपका टाइटल एक टाइटल आपने बहुत सारी वीडियोस में यूज़ किया, सेम टाइटल आपने 3 4 5 वीडियोस में यूज़ किया तो ये रीयूज कंटेंट है। अच्छा, आता है डिस्क्रिप्शन। अगर एक डिस्क्रिप्शन सारी वीडियोस में आपने डाली है तो ये रीयूज है। एक थंबनेल यहाँ पे अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके सारों में इसी तरह एज इट इज़ ये चीज़ डाली है चेंज बगैर चेंज किए हुए तो ये रीयूज कंटेंट है। तो ये आपको पता तो चल गया कि रीयूज़ क्या है और रीयूज़ क्यों होता है। अब हमें क्या सलूशन है हमारे पास कि हमें इसको कैसे क्लियर करना है। हमने इसको ऐसे क्लियर करना है कि सबसे पहले आपने आना है अपने कंटेंट में, वहाँ पे मोनेटाइजेशन पेज के ऊपर आपको बता दिया। यहाँ पे आप इसको भी रीड कर सकते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, मतलब व्हाट इज़ अलाउ फॉर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये करना है और ये नहीं करना। सो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने अपने कंटेंट में आना है। कंटेंट में आने के बाद आपको यहाँ पे अपनी सारी जो वीडियोज़ है वो देखनी है। एक बार वीडियो देखने के बाद जिस का टाइटल आपने सेम डाला हुआ है वो टाइटल आपने रिमूव करके हर एक का टाइटल आपने डिफरेंट कर देना है। नंबर 2, आपने अगर थंबनेल में गलती की है, तो आपने वो थंबनेल रिमूव करके हर एक वीडियो का अलग अलग थंबनेल आपने बनाना है। कुछ चेंजेस आपने उसमें ज़रूर करने हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में मसला है तो डिस्क्रिप्शन आपने सब के सब आपने चेंज कर देने हैं। अगर कीवर्ड्स आपने जो लगाए हुए सब के सब सिमिलरिटी जो सेम चीज़ें आपने सारे के सारे वो रिमूव करने और चेंज टैगलाइन आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये आपने चेंज कर देने। हर एक वीडियो की मतलब वो डिफरेंट होना चाहिए एक दूसरे से। अब एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि इसका जो चैनल है इसने क्या किया था जिसकी वजह से रीयूज कंटेंट आया हुआ है और इसका चैनल रिजेक्ट हुआ है। इसने ये किया था कि इसका पहले एक चैनल था, वो चैनल सस्पेंड हो गया किसी वजह से। तो उसके चैनल की वीडियोस इसने डाउनलोड करके इस नए चैनल के ऊपर इन्होंने अपलोड कर दिए। इसने सब्सक्राइबर भी पूरे कर दिए, वॉच टाइम भी कंप्लीट कर दिया। जैसे इन्होंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दी तो वहाँ से रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इसकी दूसरे चैनल के ऊपर मौजूद होती है। इस केस में आपको क्या करना है, अगर आपका दूसरा कोई चैनल है वो सस्पेंड हो गया है किसी वजह से ख़राब हो गया है, आप वो वाली वीडियो यहाँ पे न्यू चैनल में डालना चाहते तो वो आपने क्या करना है, वो आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले वो वाली वीडियो आपने डाउनलोड कर देनी है, या अगर आपके पास सिस्टम में पड़ी है या आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे वो आप वीडियो अपलोड करते हो तो पब्लिक करने से पहले वो जो दूसरे चैनल के ऊपर आपकी वीडियो पड़ी है वो आपने डिलीट कर देनी है, क्योंकि इसका यूआरएल एक ही होता है और यूट्यूब रीयूज कंटेंट ही यही है जिसकी वजह से आपका चैनल रिजेक्ट हो रहा है कि आप एक चीज़ को 2 बार यूज़ करते हो। तो वो उस चैनल की वीडियो इसने अपने इस चैनल की वीडियो के ऊपर इस चैनल के ऊपर वो वाली वीडियो अपलोड की थी तो ये सेम हो गया रीयूज, इसलिए इस चैनल के ऊपर ये रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आई है। तो आपके पास अगर इस केस में अगर आपका कोई चैनल है तो वो वीडियो अगर आप यहाँ पे अपने दूसरे चैनल में लगाना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी आप ये करें कि पब्लिक करने से पहले आपने वो वाली चैनल वाली वीडियो आपने वहाँ से रिमूव करनी है, यानी परमानेंट आपने वहाँ से डिलीट करनी है, तब जाके आप न्यू चैनल के ऊपर वो वाली वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको भी रीयूज कंटेंट का इशू आएगा। तब में टैगलाइन और ये सब चीज़ें मैंने बता दी, अगर ये सेम है तो आपने इसको चेंज कर देना है। अच्छा, एक वीडियो अगर आपने अपने चैनल के ऊपर
2 बार अपलोड किए या एक कंटेंट के ऊपर आपने 2 वीडियोस बनाई है लेकिन वो अगर सेम है तो उसकी वजह से रीयूज कंटेंट आता है। अब ये है कि सलूशन इसका कि आपने सब के सब रिमूव कर देने वो थंबनेल, टैगलाइन और टाइटल। इसके साथ जो इस केस में हुआ है, मैं आपको अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो अगर वीडियो आपको रिमूव करना पड़े, जो एक फॉर एग्जांपल ये वीडियो मैं रिमूव कर देता हूँ तो इसके ऊपर इसकी मैं यहाँ पे जो देखता थोड़े जिसके ऊपर व्यूज़ आए हुए थोड़ी सी वीडियो 104, इस वीडियो को मैं यहाँ से इसकी एनालिटिक में जाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल इस वीडियो को आपको रिमूव करना पड़ा तो ये 33.7 जो वॉच टाइम इसके ऊपर आया हुआ है, ये वॉच टाइम यहाँ से ज़ीरो हो जाएगा और आपकी चैनल के ऊपर जो वॉच टाइम आया हुआ है वो वहाँ से कट हो जाएगा। यानी आप बैक जाके मेन मोनेटाइजेशन पेज में यहाँ पे अभी इसका जो है आई थिंक 187 पब्लिक वॉच टाइम हावर ऐड हुआ है। तो अब जब मैं वो वाली वीडियो रिमूव कर देता तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वो 37 हॉर्स यहाँ से कट हो जाएंगे। हाँ, सब्सक्राइबर आपकी इंटैक्ट रहेंगे, सब्सक्राइबर आपकी चैनल के ऊपर आते हैं और जो वॉच टाइम है वो आपकी वीडियो की वजह से जनरेट होता है और यहाँ पे ऐड होता है और सब्सक्राइबर आपकी चैनल के ऊपर आते हैं। तो सब्सक्राइबर आपके इंटैक्ट रहेंगे, सब्सक्राइबर आपकी नहीं जाएंगे और वॉच टाइम आपका जाएगा। अगर इन केस आपको सारी की सारी वीडियो डिलीट करना पड़े तो जो कि इस केस में हुआ है, हमने किया है, मैंने खुद इसकी सेटिंग की थी क्योंकि सारी वीडियोस उस चैनल की थी और सेम थी, उसने वहाँ से डिलीट नहीं किया था, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई रीयूज कंटेंट की वजह से। तो सबसे पहले हमने सारी जो वीडियोस थी वो डिलीट कर दी जिसकी वजह से ये वॉच टाइम 4000 क्रॉस कर चुका था, ये वापस 0 पे आ गया था। तो अब न्यू जो वीडियो अपलोड की है उसका 187 वॉच टाइम यहाँ पे आया हुआ है। अब कितना टाइम लगता है अगर वो यूट्यूब, अगर फॉर एग्जांपल आज जो डेट है, अगर आप 10 तारीख को अप्लाई करते हो तो अगर आपकी चैनल कुछ दिनों में अगर आपको यहाँ पे आपको बता देता है कि अप्रूव हो गया या नहीं हो गया, आपको ईमेल आ गया कि रीयूज कंटेंट की वजह से आपका चैनल रिजेक्ट हो गया, तो आप नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को फिर री अप्लाई के लिए आपका चैनल अपने चैनल को तैयार करना है। री अप्लाई के लिए वो ये करना है कि अगर आपका वॉच टाइम चला गया किसी वीडियो की वजह से या आपने रीयूज कंटेंट यूज़ किए हुए तो जिसकी वजह से आपको सारी की सारी वीडियो आपको डिलीट करना पड़ा, तो वो वीडियो आपने इस तरह करना है कि जो वॉच टाइम आपको दोबारा कंप्लीट करना पड़ेगा और आप अगले मंथ की 10 तारीख को फिर अप्लाई कर सकते हैं दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए। अगर हाँ, लेकिन अगर आपका 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो और सब्सक्राइबर आपकी गिरे नहीं और कम ना हुए, 1000 हो और आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो, तो ये मैंने आपको बता दिया क्लियर कि इस केस में हमने सारी की सारी वीडियोस इसलिए डिलीट की थी कि सारी वो रीयूज वीडियो थी और यहाँ पे हमने डिलीट की थी। तो आपने अपने अगर आपने सारी वीडियो नहीं डिलीट करनी, आपने ये करना है कि आपकी कंटेंट में अगर आपने कोई एक वीडियो 2 बार अपलोड किया तो वो वीडियो आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उससे जो वॉच टाइम आया हुआ है वो वॉच टाइम आपका डिलीट होगा और सब्सक्राइबर होंगे आपके, क्योंकि सब्सक्राइबर चैनल के ऊपर आते हैं और वॉच टाइम जो है वो आता है वीडियो के ऊपर। दोबारा चलते हैं हम मोनेटाइजेशन की पेज के ऊपर। तो यहाँ पर अब ये जब इसकी सब्सक्राइबर तो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर ये जब कंप्लीट होगा 4000 घंटे तब जाके ये री अप्लाई का ऑप्शन जो है वो ओपन होगा और आप री अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो ये 7 अक्टूबर को, यानी मैंने जो डेट बता रहा हूँ जिस डेट को आप नेक्स्ट उसी टाइम 1 महीने बाद आप उसी डेट को री अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे ओपन होगा और आप जाके वहाँ पे री अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले अपने जो कंटेंट में जो भी मिस्टेक्स है वो आपको कम्प्लीटली यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे तो उसके बाद जाके आपका मोनेटाइजेशन का जो अप्रूव हो जाएगा। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने यूट्यूब के ऊपर देखी है, लोग कहते हैं कि अपील करते हैं, अपील में जाते हैं। अपील में जाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है क्योंकि पहले यूट्यूब की बहुत स्ट्रांग सिस्टम है, एआई सिस्टम है, वो इनको देखता है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकता। अगर रीयूज कंटेंट की वजह से आया हुआ है मिस्टेक तो आप वो रिमूव करने के बजाय आप अपील में जा रहे हो तो फिर आपका इससे टाइम ज़ाया होता है। तो आप मेहरबानी करके ये ना करें, अपनी वीडियोज़ को कम्प्लीटली चेकआउट करके उसमें जो मिस्टेक्स है उसको रिमूव करके आप दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए री अप्लाई कर सकते हैं। जिस डेट को आपने अप्लाई किया नेक्स्ट मंथ उसी डेट को कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रीयूज कंटेंट की। तो मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।